صدق اللہ المولانا العلی العظیم. دیکھو اللہ رب العزت قرآن شریف آیتوں میں فرماتا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ حَسَنَةٌ، کہ میں نے تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کے پیکر بنا کے دیا. اسوہ حسنہ کے پیکر بنا کے دیا، یعنی سب سے زیادہ اچھا اخلاق والا، سب سے زیادہ نمونہ والا، سب سے زیادہ اچھا طرز و طریقہ والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دیا ہے. امت کے لیے نمونہ بنا کر کے دیا. قرآن کریم کے اندر زیادہ تر واقعات ہے، نبیوں کے قصے ہیں، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، لیکن مسائل اس کے اندر بہت سارے کم ہیں. تو قصے کو دیے ہیں، اس طرح نہیں دیے ہیں کہ صرف اس کو اتہاس اور قصے کی کتاب سمجھی جائے، بلکہ واقعہ کا ایک حصہ ایک جگہ دیا ہے، دوسرا حصہ دوسری جگہ پہ دیا ہے، اور ایک ٹکڑے کو بار بار دہرایا بھی ہے. ایسے اس کو یہ سمجھایا ہے کہ یہ کوئی اتہاس کی کتاب نہیں ہے جس میں اتہاس لکھنے والا ترتیب سے لکھیں، پہلے کون سی بات ہوئی، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا. اس طرح ترتیب سے اس کو نہیں لکھا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی اتہاس کی کتاب نہیں، یہ عبرت کی کتاب ہے، یہ موجز کتاب ہے، یہ سیکھنے سکھانے والی کتاب ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے سبق آمیز کتاب ہے. اور اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اندر دے کر کے اسی قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ کے پیکر بنا کر کے بھیجا ہے. ان سے میں نے ہر کام کرایا ہے. تم جس پوزیشن میں ہو، تم جس لائن میں ہو کے اندر ہو، تم اسی کام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز و طریقے کو پاؤ گے. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع علیہ السلام بنا کر کے بھیج دیا ہے، یعنی وہ آ کر کے شریعت کے تمام احکام کو بتاتے بھی ہیں اور پھر اس کو کر کے دکھاتے ہیں. قرآن کے اندر مسائل کی آیاتیں کم ہیں اور واقعات کی آیاتیں زیادہ ہیں. پھر اس زمانے کے اندر زمانہ جب آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، مسائل کی ضرورت زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، تو تمام مسائل کہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو جو شارع علیہ السلام تھے سب بتا کر کے دیا ہے. ان کو تشریح کے لیے بتایا ہے. ان کا ہر کام، ہر عمل، ہر قول، اور ہر تقریر سب حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھائے ہیں وہ بھی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا کر کے گئے ہیں وہ بھی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا ہے وہ بھی حدیث ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ سچ ہے، اس نے کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائے. تو دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور قیامت کے دین پر امید رکھتا ہے، اللہ پر امید رکھتا ہے اور زیادہ ذکر اذکار کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت کی امتی دنیا کے تمام سارے لوگ ہیں، چاہے ماننے والے ہو چاہے جو نہ ماننے والے ہو، اسی وجہ سے سب کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے. لیکن ماننے والوں نے مثبت طریقے سے اس کو اپنائے ہیں اور اس سے کام لیا ہے، نہ ماننے والوں نے منفی طریقے سے اس کو لیا ہے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے ہیں، انجام خراب ہوگا. تو اس کے بعد مجھے یہ بتانا ہے کہ دیکھیں اپنی ایک زندگی ہے، 60 سال کی ہو
40 साल की हो या 90 साल की हो या 100 साल की उम्र हो, उस उम्र को दायरा इस्लाम के अंदर गुजार करके कैसे जाएंगे, उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा हर लम्हे में, हर गुशे में तुम्हारे लिए मौजूद हैं। इसके बावजूद भी तुम अपने पहले लोग जो गुजर गए हैं, जो औलिया किराम हैं, बड़े लोग हैं, सूफियाँ हैं, सालिहीन हैं, उन तमाम के तरीक़े को अपना सकते हो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनी ज़िंदगी के अंदर फिट करके और अपनी ज़िंदगी के अंदर ला करके तुमको दिखा करके गए हैं। लिहाजा पढ़ना चाहिए, अपने नबी के वाक़यात, अपनी नबी की ज़िंदगी को ना चाहिए जिसको सीरत कहा जाता है, और अपने बुज़ुर्गों के वाक़यात को भी पढ़ना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? ताकि नमूना मिल जाए। जैसे देखो, एक फूल होता है जो कच्चा होता है, 2-1 दिन के बाद वो गल सड़ जाता है, और एक फूल है जो कपड़े से बनाते हैं और फिर वो गल सड़ नहीं जाता है, बल्कि उसको आप रखेंगे तो मुद्दत तक ये फूल रहता है कि नहीं रहता है जी? तो देखिए, हमारे जो अकाबिरीन चले गए हैं, और ख़ास करके अंबिया किराम, वो तमाम वो फूल हैं जो कि कपड़े से बना हुआ है और फिर पैकेट के अंदर रख दिया। बुजुर्गों क्या है, अपनी ज़िंदगी के अंदर नेक अमाल किए हैं और इसको रखे गए हैं और मुंतकिल हो गए हैं कब्र के अंदर। उनसे कोई गुनाह सरजद होने वाला नहीं, अपनी ज़िंदगी के अंदर गुजार करके और इसके अंदर नेक अमाल को दिखा करके चले गए हैं। लिहाजा उनके तरीक़े को तुम अपनाना है, वो जा करके गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं। जैसे कपड़े का फूल पैकेट के अंदर रख दिया जाए तो फिर ना उसके अंदर कोई गर्दो गुबार होता है और ना वो गल सड़ जाए, बल्कि अपने घर के अंदर रखोगे तो एक मुद्दत तक वो बहुत खूबसूरत तरीके से रहता है। तो इसी वजह से ये हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो अकाबिरीन हैं, जो सलफ़ सालिहीन हैं, जो हमसे पहले गुजर चुके हैं, वो तमाम ये वो फूल है जो कपड़े का है और एक पैकेट के अंदर बंद कर दिया गया है, जो खराब नहीं होगा, सड़ेगा नहीं, कदम फिसलेगा नहीं, बल्कि जैसे थे वैसे आप रह जाए। इसी वजह से उनके तरीक़े को अपनाने के लिए बताया गया है। उनके वाक़यात को पढ़ना होगा, उनकी सीरत को, उनकी सूरत को, उनकी ज़िंदगी को स्टार्ट ही करना पड़ेगा और फिर उनके गुशे को देख करके फिर अपनी ज़िंदगी के अंदर वो कैसे करे इसको जानना होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? देखिए दुनिया के अंदर जितने आदमी आए हैं, सबसे ज़्यादा नेक, साले, अच्छे हमारे नबी अलैहिस्सलाम हैं। उसी वजह से फरमाया है, बादे खुदा वही बुजुर्ग किस्सा मुख्तसर, बादे खुदा वही बुजुर्ग किस्सा मुख्तसर, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा अल्लाह के बाद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा अल्लाह के बाद है, अल्लाह के बाद ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इसके बारे में आप क्या बताया, बस किस्सा ही है, मुख्तसर है, हर समझने वाला समझ जाता है कि अल्लाह के बाद जिसका दर्जा होगा, जिसका मकाम होगा, वो कैसे होंगे। बात समझ में आती है कि नहीं? इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जिसको सीरत कहा जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को स्टडी करें, पढ़ें और फिर अपनी ज़िंदगी के अंदर वो नमूना लाए। उससे बढ़कर के कोई बुजुर्ग नहीं है। सीरत की किताबें मदरसे के अंदर पढ़ाई होती हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेंगे तो उसके अंदर तुम्हारे लिए नमूना मिल जाएगा, जो अल्लाह ताला ने जैसे फरमाया है कि तुम्हारे लिए नमूना है, वो नमूना तुम देख पाओगे। इसके अलावा और बुजुर्गों के वाक़यात भी तुमको पढ़ना है, कैसे पढ़ने के ज़माना में कैसे थे, फिर अपने पढ़ाई छोड़ने के बाद कैसे थे, इससे पहले बचपन में कैसे थे, फिर मरने के टाइम में कैसा हुआ, फिर मरने के बाद उनकी हालत कैसी हुई, फिर उनके बारे में आप कैसे हैं, ये सब जा करके पढ़ने से पता चलता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अपनी ज़िंदगी के अंदर उन तमाम के वाक़यात देख कर, पढ़ कर और अपना कर रंग चढ़ाना है। क्या करना है? रंग चढ़ाना है। बताएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में से देखो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने का आयब नहीं निकाला। अच्छा हो गया तो खा लिया, खराब हो गया दिल नहीं चाह रहा है छूट देंगे, छूट दिया है। कभी नहीं कहा कि ये खाना अच्छा है, ये खाना खराब है, ऐसे नहीं फरमाया। हाँ, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर के अंदर हिजरत के वक्त में मदीने के पास जाकर के ठहरे थे, तो उनके घर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सब्जियां दिए गए थे जिसके अंदर क्या है, प्याज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना फरमाया, बताया कि सालन बना करके देने के बाद भी नहीं खाया है। प्याज, कच्चा प्याज हो तो इसको खाना मुकरूह है, और मस्जिद वगैरह के करीब जाना मकरूह तहरीमी है। उसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कच्चा प्याज सालन बना करके देने के बाद भी नहीं खाए हैं। सालन बनाने के बाद तो उसकी बदबू ख़त्म हो जाए तो तुम खा सकते हैं, मकरूह नहीं, लेकिन अच्छा कच्चा खाएंगे तो मकरूह है। मस्जिद के करीब जाना मकरूह तहरीमी है। तो आप सुने, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही लौटा दिया, कहा कि तुम खा लो, हमारे पास फरिश्ते आते जाते हैं, उनको तकलीफ होगी। तो ये है। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी आयब नहीं निकाले। आज बहुत सारे मामलात ऐसे बिगड़ जाते, सारी शादियाँ टूट जाती है और बहुत सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, क्योंकि खाने के अंदर वो अच्छा नहीं हुआ, वो ख़राब हो गया, ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, और कहते कहते बाद में बिगड़ जाता है मामला, और फिर वो अपने अपने घर के अंदर चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते रहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर ये वाक़या मिला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी चेयर और टेबल पर बैठ करके नहीं खाए हैं, कभी डेस्क बेंच पर बैठ करके नहीं खाए हैं। बस मिट्टी पे बैठते हैं और फिर आराम से खाते हैं। मिट्टी की आदमी है और फिर मिट्टी से ताल्लुक़ है। आप जाकर के कभी सैनी पर यानी डेस्क बेंच पर नहीं बैठ के खाए हैं, और कभी चेयर और टेबल पर बैठ करके नहीं खाए हैं। आज जाकर के बहुत सारे पैसे लोगों के ख़राब होते जा रहे हैं इस्लाम के तरीक़े को ना अपनाने की वजह से, क्योंकि आज शादी ब्याहों के अंदर चेयर टेबल और इसमें पैसा खर्च होता चला जाता है। नबी इस्लाम के तरीके अपनाए तो फिर कोई मुश्किल नहीं। नबी इस्लाम ने हर वक्त, अल्लाह ताला ने जब दो काम के अंदर इख्तियार दिया गया था तो नबी इस्लाम ने हर वक्त आसान को कबूल किया है, और जो मुश्किल था इसको छूट दिया है, क्योंकि उम्मती के लिए वही अपनाना है जो उन्होंने अपनाया है। उसी वजह से आसान को अपनाया है ताकि उम्मती के लिए आसानी हो जाए, ताकि उम्मती के लिए क्या हो गए, आसानी हो जाए। इसी वजह से नबी इस्लाम ने आसान को अपनाया। नबी इस्लाम ने मिट्टी पर बैठ करके खाए ताकि उम्मती सीखे और आसानी के साथ क्या करे, खाना खा सके। तुझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये नबी इस्लाम का तरीका था। बैठना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जाकर के हुजूर से हंसे नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हुजूर से हंसे नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे। क्या करते थे? मुस्कुराते थे। ज़्यादा हंसने के बाद उसके साथ साथ मुसीबतें आती रहती है। उसी वजह से फरमाया गया है कि फलयज़हकू क़लीला वलयबकू कसीरा, कम हंसो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती के लिए वही सिखा कर रखे गए हैं। कभी खुशी की बात आई, मुस्कुराहट दिए हैं, लेकिन खिलखिला कर हंसे नहीं हैं, जिससे नमाज भी ख़राब हो जाती है। अब देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी चपाती रोटी नहीं खाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी चपाती रोटी नहीं खाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर गुर्बत इतनी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर गुर्बत इतनी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जा कर के पेट भर करके अपने घर वालों को नहीं खिला सके और खुद नहीं खा सके। बात समझ में आ रही कि नहीं? 63 सर गई थी, कभी जा कर के अपने और अपने घर वाले पेट भर करके खाना मुयस्सर नहीं हुआ, और कभी जा कर के खजूर पानी पी लेते थे और महीने के महीने गुजर जाता था। घर के अंदर चूल्हा जलाने के लिए कोई चीज़ नहीं होती थी, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काम के अंदर मजबूती और सख्ती के साथ अपनाते हुए रहे। जब ग़ज़वा खंदक का टाइम आया है
खंदक खुद रहे थे। सहाबा किराम ने बताया भूख है, पत्थर बंधा हुआ है पेट के अंदर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया है कि मेरे पेट के अंदर 2 पत्थर है, तुम 1 पत्थर बंधे हुए हो, लिहाजा सब्र करो। और फिर दे है अल्लाहुम्मा लौला अंता महतदैना वला तसद्दक़ना वला सल्लैना, या अल्लाह हमको अगर हिदायत ना देते तो हम सदका नहीं कर पाते, नमाज नहीं पढ़ पाते। अल्लाह का शुक्र ज़बान पर जारी है। लिहाजा सब्र करना, सब्र करना, सब्र करना। सब्र का नतीजा मीठा होता है, अच्छा होता है। बात समझ में आ रही? आज वो नहीं हुआ, कल वो नहीं हुआ, कल वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये शिकायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं था, वो बंद कर देना है। बात समझ में आ रही? फिर जाकर के अपने बुजुर्गों का वाक़यात पढ़ना है। एक दिन बताया था तुमको यहाँ इशारे से, पाकिस्तान के रहने वाला मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है, उनके वालिद साहब का नाम था शफी उस्मानी साहब। तुम आगे जाकर के पढ़ोगे, मारिफुल कुरान है, वालिद साहब की लिखी हुई किताब मारिफुल कुरान, कुरान शरीफ की तफसीरें हैं। तकरीबन तमाम उलमा और तमाम तलबा इसको पढ़ते हैं और वो बहुत चलता है। मारिफुल कुरान, तुम नाम सुने हैं? मारिफुल कुरान नाम नहीं सुने? उनके बेटे तकी उस्मानी है, उन्होंने ये किताब लेके आसान तर्जुमा कुरान, उन्होंने भी बहुत सारी किताबें लेके एक उन्होंने ये लेके है आसान तर्जुमा कुरान। बात समझ में आ रही कि नहीं? एक दिन उनके बाप रहते हुए वो जाकर के टॉयलेट से आए, आने के बाद दरवाजा खुल के देना नहीं, बस जो बाहर है बाहर है। एक दिन वो टॉयलेट से आए हैं, उनके वालिद साहब जाकर के आए हैं, आने के बाद कहा तुमने आज तो कबीरा गुनाह कर दिया, तुमने आज तो क्या कबीरा गुनाह कर दिया। बताया कबीरा गुनाह से क्या? बताया तुम इसको साफ करके क्यों नहीं आए हैं, दूसरे को तकलीफ हुई है, आज मुसलमान को तकलीफ देना गुनाह है, गुनाह कबीरा है, इज़ाए मुस्लिम हराम है, तुम जानते हो ना, तो दूसरे मुसलमान को तकलीफ दिया है, उसी वजह से आपने गुनाह कबीरा किया। ये हमारे बुजुर्गों के वाक़यात से मिला है, एक सबक है। मुफ्ती तकी खुद अपान से कहते हैं कि उनके बाप वो जब छूटे थे, सुनो आप, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को लक़ब मिला है शेखुल इस्लाम, इस्लाम के शेख, यानी दुनिया के जितने बड़े आदमी हैं, इस्लाम के ज़्यादा जानने वाले हैं, उन तमाम में से एक है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। और जाकर के एक हिसाब से कहे कि सबसे बढ़कर जान सकते हैं, उसी वजह से उनको शेखुल इस्लाम बोल दिया गया है, क्योंकि आजमी होते हुए इस तरह के मालूमात वो जाकर के काबिल हैरत हैं, और इस वजह से उनको तमाम आजमी वालों ने उनको क्या लक़ब दिया है, शेखुल इस्लाम। जैसे हुसैन अहमद मदनी साहब को लक़ब दिया गया था शेखुल अरब वल अजम, वो अरब के भी शेख थे और आजम के भी शेख थे। अरब में भी हदीस पढ़ा है और हिंदुस्तान में आजम में भी पढ़ा है। जाकर के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कहते हैं कि मैं जब छूटा था तो मुझे मेरे अब्बा मस्जिद लेके जाते थे और बताते कि ये जो चप्पल रखे हुए हैं ये सब ठीक करो, ये बिखरे हैं उसको सही करके रखो, ताकि लोग मस्जिद से निकलते और आसानी से जा सके। बात समझ में आ रही कि नहीं? वो जाकर के अब इतने बड़े बने हैं, इतने बड़े बेटा हैं, लेकिन पहले क्या किया है, मस्जिद के अंदर आने के बाद लोगों की चप्पल दुरुस्त किया है, ताकि उसके अंदर वो जज्बा पैदा हो जाए कि आगे जाकर के बेटा दीन की खिदमत कर सके, लोगों की खिदमत कर सके, वो उसके दिल और दिमाग के अंदर रस जाए, उसी वजह से हुए कराए। तो एहसान फरमाने वाला बाप होता है, तो हर चीज़ पकड़ करके खुरा करके सिखाता है, यहाँ तक कि बाजार में भी ले करके उसको कैसे किया जाए ये भी सिखाता है। लिहाजा बाप ने अपने बेटे को ये सिखाया है, इसी वजह से बेटा बहुत बड़ा हो गया है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो बेटे को बड़े बनाने से बाप को काम आता है, बेटे को बड़े बनाने से बाप को काम आता है। कैसे काम आता है? सुनो, उन्होंने जो मारिफुल कुरान लेके थे ना, मारिफुल कुरान लेके नहीं, मारिफुल कुरान बताया, मारिफुल कुरान के अंदर ये जो सूरह 3 है, सूरह 3, उस सूरह 3 की तफसीर में जाकर के उनके बाप शफी उस्मानी साहब ने तफसीर में एक हदीस लाए हैं, जिसके अंदर ये बयान है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी ज़ात से कुछ सिफात दे करके उसको क्या किया है, दुनिया के अंदर पैदा फरमाया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये जाकर के हदीस शरीफ के अंदर बयान है, ये हदीस है।
انہوں نے لکھ دیا ہے کسی طرح تسامح ہو گیا ہے. یہ لکھ دیا ہے کیا؟ یہ جا کر کے حدیث نہیں ہے کسی کا، معقولہ ہے، حدیث سے انکار کر دیا. تو جان بوجھ کر کے نہیں، غلطی سے ہوگا. تو پھر جا کر کے ان کے بیٹے نے اس کو، جب اس کو پکڑا گیا تو بیٹے نے اس کو درست کر کے لکھا، درست کر کے لکھا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ آپ جا کر کے نیٹ کے اندر بھی معرف القرآن، نیٹ کے اندر معرف القرآن جب نکالو گے اور پھر دیکھو گے تو اس میں دیکھو گے اس جگہ میں صراطین کی تفسیر میں کچھ جگہ ایسے خالی ہے اور ڈٹ ڈٹ دیا ہوا ہے، یعنی اس کو یہاں سے مٹا دیا گیا اور بعد میں چھپوانے والے بھی اس کو درست کیے ہیں. اب پہلے کے چھپوانے والے جو ہے ان کی کتابوں کے اندر ابھی تک ہے. بات سمجھ میں آئے گی؟ تو اسی وجہ سے انہوں نے بیٹے کو ایسے جذبات دیے ہیں اور پھر بیٹے نے ایک کام کیے ہیں. اسی وجہ سے واقعات پڑھنے سے وہ تمام حالات ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ ہم اپنے طالب علمی زندگی کے اندر بزرگوں کے واقعات پڑھے ہیں. شیخ احمد علی صاحب کی زندگی کے بارے میں ہم نے مکتب کی کتاب میں لکھے ہیں، اور یہاں ہمارے بدرپور کے عبد الجلیل صاحب ہے، ان کی زندگی کتاب بھی خرید کر کے بچپن میں طالب علمی زندگی کے اندر پڑھے ہیں. مشائخ چشت کا کتاب ہے جن کے اندر چشتیہ تمام اکابرین کی زندگی ہیں، وہ بھی ہم نے پڑھے ہیں. اور سیرت کی کتابیں تو مدرسے کے اندر پڑھے بھی ہیں. اور حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو بھی پڑھے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو آپ جا کر کے تم کو پڑھنا ہے اور ان سے حاصل کرنا ہے اور پھر زندگی کو اس طرح چلانا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ورنہ پھر صحیح نہیں چلنے کا. سنا حسین احمد مدنی صاحب کے زندگی کے جو پڑھے ہیں ہم، حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی جو کتاب پڑھے ہیں وہ بنگلہ زبان میں ہے. وہ بنگلہ زبان میں جو تھی وہ میں نے پڑھے. میں ایک ٹائم جاگیر میں تھا تو دیکھا ہے ادھر جاگیر کی کسی نے رکھا ہے کہ ادھر یہ کتاب کس کی کتاب، کسی کی کتاب ہوگی یہاں رکھی ہوئی تھی. تو پھر جا کر کے میں نے اس کو اٹھا کر کے پڑھا ہے. تو اس کے اندر یہ ملا ہے کہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعات ملا ہے کہ وہ ایک دن سفر کرتے ہوئے ٹرین سے جا رہے تھے. تو جاتے وقت دیکھے ہیں کہ ایک باتھ روم میں جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے. انہوں نے سمجھا ہے کہ کوئی خراب ہوگا، اسی وجہ سے وہ واپس آ گیا. پھر جا کر کے دیکھتے ہیں خراب ہے، اس کو صاف کر دیا اور وہ اس آدمی کو آ کر کے بتایا آپ جاؤ یہ صحیح سالم ہے. بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ تو یہ خدمات ٹرین میں چلتے ہوئے بھی امت کی خدمت کیسی ہو جائے اور اس کی فکر ہے اور پھر کیے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں ہے؟ یہ واقعات بالکل سچ ہیں. اور پہلے جو ریل گاڑی ہے ایسے آپ کی ایسی نہیں تھی، وہ قیلے سے چلتی تھی اور بہت زیادہ دھوئیں نکلتے تھے اور آدمی کے کپڑے وپڑے سب کھالا ہو جاتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس ٹائم کا یہ واقعہ ہے. ابھی کے وہ جیسے فریش سب کچھ ہے، بٹ گیس ہے اور وہ اچھے ہے، ایسے نہیں تھے. بہت یہ نکمے اور بہت گٹے اس زمانے میں ایسا کیے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ دیکھیں ہمارے بزرگوں کا واقعات ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کی باتیں ہیں جو اور بہت ساری ہے جو بتانے کے بعد ختم نہیں ہونے کا. لیکن مختصر طور پر میں نے اس کو تم کو بتایا ہے کہ تم ایسے کرو کہ اپنے بزرگوں کے اور اپنے نبی کے واقعات کو بھی پڑھو. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، کہہ کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں تم کو اس کے اندر کیا قصہ فرمانے والا ہو جو کہ میں تم کو وحی کے طور پر تم کو دے رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ جو انبیاء کرام کے واقعات ہیں قرآن شریف کے اندر سورہ یوسف علیہ السلام کے واقعات ہیں اور باقی ٹکڑے کر کے تمام نبی کے حالات کم بیش اس کے اندر بیان ہیں. تو اور پھر اس کے علاوہ کتابوں کے اندر بھی بیان ہے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہے، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات ہے، حضرت ابراہیم اسماعیل کے واقعات ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ وہ تمام پڑھے اور اس سے سبق لے اور پھر اپنی زندگی کو اچھی طرح گزارنے کی کوشش کرے.
اور تو بتایا ہے اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو آخرات پر اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہے اور اللہ کی زیادہ ذکر کرتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی، اسوہ حسنہ کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو پھر وہ تمام پڑھو گے، شوق پیدا کرو گے اپنے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اچھی طرح پڑھیں گے اور اولیاء کرام ہمارے بڑوں کی کتاب کو پڑھو گے، ان سے طریقے کو اپناؤ گے کہ نہیں اپناؤ گے؟ جی بہت سارے ہیں ہمارے علماء دیوبند کے، بہت ایسے ہیں۔ ایک رشید احمد گونگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کتاب ہے تذکرۃ الرشید، تذکرۃ الرشید، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے اور شیخ الہند کے ہے شیخ الہند لمبر، اور ایسے ہی علماء دیوبند کے بہت ساری کتابیں ہیں جس کے اندر بزرگوں کے واقعات ہیں اور صحابہ کرام کے بھی واقعات ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو اس کو پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟